یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. پیش ہیں خبریں. سب سے پہلے سرخیاں. وزیر اعظم کے ہاتھوں ملک میں تیار کردہ پہلا طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت بحریہ میں شامل. لیفٹیننٹ گورنر نے شہرکاری کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مضبوط سماجی بنیادی ڈھانچے کی اہمیت کی اجاگر. جموں میں سمارٹ سٹی کے 14 پروجیکٹوں کی شروعات. جموں کشمیر یوٹی کو فیڈریشن آف انڈین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی جانب سے سال 2021 کے لیے سمارٹ پولیسنگ ایوارڈ عطا. اور سری لنکا میں 5 ستمبر سے شروع ہونے والی فٹ بال چیمپئن شپ کے لیے 23 رکنی بھارتی ٹیم میں جموں کشمیر کے 3 کھلاڑی بھی شامل. خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کوچی میں کوچین شپ یارڈ لمیٹڈ میں ملک میں ہی تیار کیے گئے پہلے طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت کو بحریہ میں شامل کیے جانے کی رسم انجام دی. وزیر اعظم نے نوآبادیاتی ماضی سے باہر نکلتے ہوئے بحری کے نئے نشان کی نقاب کشائی بھی کی. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہر بھارتی ایک نئے مستقبل کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ وکرانت محض ایک جنگی جہاز نہیں بلکہ 21ویں صدی میں بھارت کی سخت محنت، ذہانت اور عزم کا ایک ثبوت ہے اور وکرانت ایک بہت بڑا، وسیع اور جدید طرز کا طیارہ بردار جہاز ہے. مودی نے بحریہ کی خدمات کو تسلیم کیا اور ان کی خدمات کی تعریف کی. اس کے علاوہ انہوں نے کوچین شپ یارڈ کے انجینئروں، سائنسدانوں اور خصوصاً ان ورکروں کی بھی تعریف کی جنہوں نے اس پروجیکٹ پر کام کیا. طیارہ بردار جہاز کی زبردست جسامت کی وضاحت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ایک فلوٹنگ سٹی ہے جو بجلی پیدا کرتا ہے اور 5000 گھروں کو بجلی پہنچانے کے لیے کافی ہے. مودی نے کہا کہ اب تک بھارتی بحریہ کے پرچم پر غلامی کی نشانی باقی تھی لیکن بھارتی بحریہ نے آج سے نیا پرچم حاصل کر لیا ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ جب وکرانت ہمارے سمندری زون کی حفاظت کے لیے اترے گا تو بحریہ کی بہت سی خاتون فوجوں کو بھی متعین کیا جائے گا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اربنائزیشن یعنی شہرکاری کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط سماجی بنیادی ڈھانچے کی دستیابی کی ضرورت اجاگر کی ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں شہروں اور قصبوں کو جاذب نظر اور فعال بنانے کے لیے سبھی متعلقین اور عوامی سطح کی شراکت داری ضروری ہے. وہ آج جموں سمارٹ سٹی کے تحت 14 پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے اور افتتاح کرنے کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ آج شروع کیے گئے سمارٹ سٹی کے پروجیکٹوں کی بدولت بہتر عوامی خدمات، مقامی اقتصادی ترقی کے مواقع اور ہر کسی کے لیے آسان رسائی ممکن بنے گی اور اس طرح سے لوگوں کا رہن سہن بھی سمارٹ بنے گا. منوج سنہا نے کہا کہ انتظامیہ جموں کو ایک ایکو سٹی میں بدلنے کا ارادہ رکھتی ہے جہاں ماحولیاتی اساس پروان چڑھ سکے اور دیر پا اقتصادی سرگرمیاں انجام دی جا سکیں. انہوں نے کہا کہ جموں کی مالا مال ایکولوجی سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور عوام کی خوشحالی کے لیے 6 پروجیکٹوں کو دردست لیا گیا ہے. اس موقع پر انتظامیہ کے کئی سینئر آفیسر اور عہدیدار بھی موجود تھے. ایک اہم پیش رفت کے تحت جموں کشمیر کو فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز فکی کی طرف سے سمارٹ پولیسنگ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. یونین ٹیریٹری کو یہ ایوارڈ ویجیلنس کلیئرنس نظام میں آن لائن موڈ پر بہتری لانے کے سلسلے میں سال 2021 کے لیے دیا گیا ہے. یہ اعزاز جموں کشمیر کے لیے ایک بڑی حصولیابی ہے کیونکہ ملک بھر سے سمارٹ پولیسنگ ایوارڈز کے لیے 2200 نامزدگیاں داخل کی گئی تھیں. یہ ایوارڈ نئی دلی میں دیا گیا جو جموں کشمیر سرکار کی طرف سے اینٹی کرپشن بیورو کے ڈائریکٹر آنند جین اور کشمیر یونیورسٹی کے ڈائریکٹر IT معروف قادری نیز ویجیلنس کے ڈپٹی سیکرٹری ڈاکٹر عثمان خان نے حاصل کیا. جموں کشمیر سرکار کی طرف سے کیے جا رہے ڈیجیٹل اقدامات زمینی سطح پر عوام کے لیے نہایت ہی سود مند ثابت ہو رہے ہیں جن میں سے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ویجیلنس کلیئرنس کا آن لائن نظام بھی شامل ہے. جموں کشمیر میں گورننس کی انفارمیشن ٹیکنالوجی منظرنامے میں کافی اصلاحات لائے گئے ہیں اور بہت سی خدمات کو آن لائن کر دیا گیا ہے. GAD اور اینٹی کرپشن بیورو کی گزشتہ چند برسوں کی انتھک مشقت کا صلہ آج اس ایوارڈ کی صورت میں حاصل ہو گیا ہے. جموں کشمیر میں زراعت اور اس سے منسلک سیکٹروں کی دیر پر ترقی کے لیے ایک جامع زرعی پالیسی مرتب کرنے کی غرض سے محکمہ زرعی پیداوار کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں تکنیکی ورکنگ گروپوں کی ایک میٹنگ کی صدارت کی
जिसमें यूटी सतह की एपेक्स कमेटी को मंसूबे सौंपे जाने के अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में और लोगों के अलावा जम्मू और कश्मीर की दोनों ज़रई यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों, नीज एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर महकमों के सेक्रेटरी ने शिरकत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने आज की मीटिंग में तकनीकी वर्किंग ग्रुपों से मंसूबे सौंपे जाने के बारे में तफसीलात हासिल की। अटल डलू ने मीटिंग के शुरका को बताया कि कमेटी का हदफ अगले 5 वर्षों में ज़राअत पर मबनी जीडीपी का हिस्सा दोगुना करना, मरकज की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस की गई 900 करोड़ रुपए की रकम को इस्तेमाल में लाना, 2000 नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत फराम करना, फूड प्रोसेसिंग को तिगना करना और ग़िज़ाई अशिया को ज़ाया होने से बचाना है। एक अलहदा मीटिंग में सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में अटल डलू ने जम्मू कश्मीर में जड़ी बूटियां काश्त और तैयार करने के लिए हिकमत अमली और तरीक़ेकार का जायजा लिया। मीटिंग में महकमे ज़राअत की सेक्रेटरी शबनम कामिली, डायरेक्टर आयुष और दीगर ऑफिसर भी मौजूद थे। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों पर आपसी गुफ्तो शनीद की गई और अद्वियात तैयार करने के हामिल पौधों की काश्त तिजारती पैमाने पर करने की हिकमत अमली पर गौर-ए-खास किया गया। महकमे जंगलात और माहौलियात के कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा ने आज बैंकेट हॉल श्रीनगर में एक तकनीकी वर्कशॉप का इफ्तिताह किया, जिसका एहतमाम माली साल 2023-24 के लिए एपीओज यानी महकमे की सरगर्मी की सालाना मनसूबाबंदी की तैयारी के लिए किया गया है। वर्कशॉप महकमे जंगलात के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर की क़यादत में मुनाकिद किया जा रहा है, जो कि अगले माली साल के एपीओज को साइंसी तर्ज, नतीजे खैज और अवाम दोस्त बनाने के लिए अमल आवरी एजेंसियों की रहनुमाई करेंगे। संजीव वर्मा ने नर्सरियों के बुनियादी ढांचे में वसी पैमाने पर बेहतरी लाने की जरूरत उजागर की ताकि पौधकारी में इजाफा दर्ज किया जा सके। उन्होंने फॉरेस्ट कवर में भी इजाफा करने के लिए इकदाम करने पर जोर दिया। अनंतनाग जिले में आज कई जमीन मालिकान में लैंड पासबुक तकसीम किए गए। जिले के तरक्याती कमिश्नर ने आपकी जमीन आपकी निगरानी मुहिम के तहत अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले 250 मालिकान जमीन में ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुताबिक लैंड पासबुक तकसीम किए। गौरतलब है कि इस पहल के तहत जमीन मालिकान सरकारी दफातर के चक्कर काटने के बजाय भी अपने लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन ही देख सकते हैं, जिसकी बदौलत तहसील और नयाबतों में लोगों का रश कम होगा और यूं ये दफातर अपना काम मजीद बेहतरी के साथ अंजाम दे सकेंगे। कदीम तारीखी खानकाही अंदराबिया मलारटा में आज हजरत सैयद मीर मीरक अंदराबी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। उर्स की तकरीब में दूर नजदीक से आए हुए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नात मुनाजात और दरूद अज़कार की रूह परवर मजलिस आरास्ता हुई। उधर आज पांपोर में हजरत ख्वाजा मसूद वली पांपोरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया गया। मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने नमाज जुम्मा के मौके पर ख्वाजा मसूद वली रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली और उसकी तकरीब में अकीदतमंदों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर से आज कोरोना वायरस के 152 नए मामलात की निशानदही हुई है, जिनमें से 40 सूबे जम्मू और 112 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से है। हालांकि आज भी 164 कोविड मुतासरीन सेहतियाब हो गए हैं। सरकारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक फिल वक्त यूटी में एक्टिव कोविड मरीजों की तादाद 1039 है। आज सबसे ज्यादा 28 मुतासरीन की निशानदही श्रीनगर जिले से हुई है। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक जायद 2 अरब 12 करोड़ 75 लाख कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान जायद 9,000 कोविड मुतासरीन सेहतियाब हो गए, जिसके मुकाबले में 6,000 से ज्यादा नए कोविड मरीजों की निशानदही भी हो गई। मुल्क में सरेदस्त कोविड सेहतियाबी की शरह 98.68% है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज ब्यूरो बडगाम में एक प्रोग्राम से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि अक़वाम आलम की तरक्की का राज दरहकीकत इत्तेहादो इत्तेफाक में पोशीदा है। उन्होंने कहा कि हकीकी तरक्की के हुसूल के लिए सबको अपने अलग अलग नजरियात बालाई ताक रखने चाहिए। उधर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने शेर कश्मीर भवन जम्मू में सांबा, जम्मू और रियासी से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के अहदेदारों के एक जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की अवाम फिरका परस्ती के हमेशा खिलाफ रहे हैं। इस मौके पर पार्टी के जम्मू जोन सदर एडवोकेट रतन लाल गुप्ता भी मौजूद थे।
श्रीलंका के कोलंबो शहर में 5 सितंबर से साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के तहत अंडर 17 जुमरे की जो फुटबॉल चैंपियनशिप शुरू होने वाली है, एक अहम पेशरफ्त के तहत उसमें जम्मू कश्मीर के 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तफसीलात के मुताबिक श्रीलंका में भारत की नुमाइंदगी करने वाले 23 खिलाड़ियों के इस स्क्वाड में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जिन 3 खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया है, उनके नाम फैजान, तजम्मुल और हुजैफ हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तीनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किए जाने पर मुबारकबाद देते हुए उनके तई नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक ट्वीट पैगाम में एलजी ने कहा कि इन खिलाड़ियों का भारतीय टीम में शामिल होना हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल ने आज राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करके उनकी नोटिस में जिला सांबा के कई तरक्याती मामलात लाए। इस दौरान राजौरी के एक सियासी कारकुन एडवोकेट गुफ्तार अहमद चौधरी ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करके उनकी दानिस्त में खित्ते पीली पंचाल के बिल अमूम और कोटरंगा बुद्धल के इलाकों के मसाइल बिल खुसूस लाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दोनों के मसाइल और मुतालबात गौर से सुनने के बाद उन्हें यकीन दिलाया कि इन इलाकों के जायज मसाइल को अनकरीब हल किया जाएगा। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने उस अज़्म का एक बार फिर इजहार किया है कि वो अपनी बाहमी तिजारत को अगले 5 साल में 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचा देंगे। दोनों मुल्कों ने यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस ऑफ इंडिया जैसे जराये से फौरी तौर पर अदायगी के इम्कान पर भी बातचीत की। इन मामलात में अबू ज़हबी में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात कमीशन की 14वीं मीटिंग पर गौर किया गया, जिसकी सदारत मुश्तरका तौर पर यूएई के वजीर खारजा शेख अब्दुर्रहमान बिन जायद अल नह्यान और भारत के वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने की। मुत्तहिदा अरब अमारात की उमूर खारिजा और बैनुल अक़वामी ताउन की वजारत और सकाफती ताल्लुकात की हिंदुस्तानी काउंसिल ने भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात की सकाफती काउंसिल फोरम के क़याम के लिए समझौते पर भी दस्तखत किए हैं। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। वजीर आजम के हाथों मुल्क में तैयार करदा पहला तैयारा बरदार बहरी जहाज आईएनएस विक्रांत बहरिया में शामिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शहरकारी के मसाइल से निपटने के लिए मजबूत समाजी बुनियादी ढांचे की अहमियत की उजागर। जम्मू में स्मार्ट सिटी के 14 प्रोजेक्टों की शुरुआत। जम्मू कश्मीर यूटी को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से साल 2021 के लिए स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड अता। और श्रीलंका में 5 सितंबर से शुरू होने वाली फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए 23 रुकनी भारतीय टीम में जम्मू कश्मीर के 3 खिलाड़ी भी शामिल। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।